Good morning, everyone. Chanchal, Soumya, Beshali, Chanchal, Swati, Kriti, Shubham. Good morning to this session. Give me 2 minutes. Let others to join. Bharti, good morning. Let others to join, and we'll start the session in next 5 minutes. Good morning, everyone. So, is this slide visible? Slide is visible. Do let me know in the comment section, is this slide visible? Fine, fine. Okay, done. Give me a second. Anyways, fine. So we are going to do the theories of the trade union. So if you are preparing for Coal India, if you are preparing for Airport Authority of India, this theories are important and they are more than enough. Whatever I'm teaching you, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. दिस इज मोर देन इनफ. जो जहां यहाँ पे लिखा है बहुत ही सेग्रीगेटेड मैनर में, बहुत ही डिफ्रेंशिएट करके चीजों को मैंने लेकर आई हूँ. इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको. ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोल इंडिया के लिए और एएआई के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए. ठीक है, जो जो पढ़ना है मैं आपको देते जाऊंगी, उतना ही पढ़ेंगे. एक्स्ट्रा बुक्स कुछ भी आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है. फाइन. सो द थ्योरी ऑफ द ट्रेड यूनियन. लेकिन अगर आप कंप्लीट जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. ठीक है. सो थ्योरीज ऑफ द ट्रेड यूनियन. व्हाट इज ट्रेड यूनियन? सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन. So trade union is what? A association of the workers or the employees who come together. They come together and they form the association. They associate, एक साथ मिलते हैं. And this association of the workers, when it get registered under the Trade Union Act, that is called as the trade union. Now, why the name trade union? Why it's the trade union? Since this is all together related to business. ये बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, उनकी यूनियन. सो द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द बिजनेसेस, डूइंग द बिजनेसेस, are the employees, are the worker, and hence the name trade union. The trade union is defined under the Trade Union Act that we would be studying once we do the trade union legislation. ठीक है, जब हम लॉ पढ़ेंगे तब हम उस लॉ के हिसाब से इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ यू रिमेंबर इट इज द एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स और द एम्प्लॉइज which can be permanent or temporary nature. Permanent भी हो सकता है, temporary भी हो सकता है. Now, there are the theories of trade union. Theories of trade union. What does this mean? Why do we study these theories? There are different authors who have given different perspective why trade unions are formed. Trade union क्यों बनती हैं या ट्रेड यूनियन की जरूरत क्या है? So there are different authors who have given the reasons why trade union are formed, what are the role the trade union play, and how they influence the industrial relation. Clear?
Now this trade union theories or this trade union formation in India has been the result of industrialization. As the number of industries were increasing in India, it resulted into exploitation. It resulted the laissez-faire, means free, no government involvement in the privatization, led to the exploitation, because of which the trade unions were formed. So trade union in India is the result of industrialization, and the history of trade union in India is 50 years old. That's it. These 2 points you need to know. So the first theory is given by Sidney Brittis Webb, whose idea or ideology about the trade union is revolutionary democratic. So Sidney and Brittis Webb said, इनकी definition exam में पूछी जाती है. What is the definition given by Sidney and Brittis Webb? This is important. You may be asked in exam the definition, and you are asked to find out who is the author. So the trade union are the continuous association of wage earner. तो keyword यहाँ पे क्या है? Continuous association of wage earner for regulating the working conditions. ये है डेफिनेशन ट्रेड यूनियन की, सिडनी और ब्रिटिश वेब की. नाउ इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी नॉन रेवोल्यूशनरी थ्योरी. अब सिडनी ब्रिटिश वेब who believe that there are two groups, employee and the employer, and this two group or these two classes are from different levels. So obviously they will have a conflict. It means there is a class struggle. But what did Sidney and Brittis Webb says that this trade unions are formed not to remove this structure or remove the capitalist. कैपिटलिस्ट कौन है? एम्प्लॉयर. लेबर एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड यूनियन. सो देयर इज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन देम. So trade union or the association of these wage earners are formed not to remove the capitalist. यानी उनको इनके अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है. They don't want to do it, but they want to maintain a balance. They want to restructure the society through what? Through law, legal enactment, through collective bargaining, through mutual insurance. यानी हमें सिस्टम को नहीं बदलना है, हमें सिस्टम में रह के ही एम्प्लॉयज को उनके राइट्स दिलाने. और ट्रेड यूनियन ये कैसे करेगी? एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, उनके साथ म्यूचुअली इंश्योरेंस फैसिलिटीज लेकर आके, लीगल एनैक्टमेंट लॉ के थ्रू. So according to Sidney Brittis Webb, trade union is restructuring of the society by eliminating capitalist profit maker. Eliminating capitalist profit maker का यहाँ पे मतलब है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस को हटाकर एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू सिडनी ब्रिटिश वेब, ट्रेड यूनियनिज्म एज अ क्लास स्ट्रगल exist both under capitalism and socialism. अब ये कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है. सो दो चीजें होती हैं. कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वेयर कंप्लीट पावर is with capitalist, means the employer. Clear? Capitalism is a structure where the authority, decision making, power is completely concentrated with the capitalist. They will think about their own profit irrespective what the employee or workers are looking for. That is capitalism. What is socialism? Socialism believe a kind of a structure of society or an industry where both employees and employer, they are a part of society and hence they are
involved into decision making. They are having balance of power. That is socialism. So Sidney British Webb says that trade union can exist in both capitalism and socialism society. According to this Sidney British Webb, employees or the trade union, employees association or the trade union should not go against the society or capitalist structure or the employer. Rather, they should use the method of collective bargaining, laws which are enacted by government, that is your state intervention, government को बीच में आना चाहिए, and mutual insurance के through employee को benefit करवा के उसी society को restructure करेंगे. It advocates national minimum wage and uniform labor. However, the criticism associated with this is does not address how trade union emerge or develop. ये तो बता दिया कि ट्रेड यूनियन बनते हैं, लेकिन क्यों बने, क्या रीजन है उनका, इसको कंसीडर नहीं किया इस थ्योरी के अंदर. बुक को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक पूछे जाते हैं. द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म को बाइबल ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म कहा गया है. ठीक है, एम आई क्लियर? सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? एम आई क्लियर? आई एम मूविंग वेरी वेरी स्लो. सबको क्लियर है? पहली थ्योरी समझ में आ गई सिडनी और ब्रिटिश वेब की. इन्होंने क्या दिया? नॉन रेवोल्यूशनरी. नॉन रेवोल्यूशनरी यानी लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमें शांति पूर्वक आपस में सलाह मशवरा करके चीजों को रिजॉल्व करना है. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको उसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाकर उसके अंदर एम्प्लॉयर के साथ में ट्रेड यूनियन को भी सरवाइव करवाना है, उनको उनके राइट्स देने हैं. नेक्स्ट हम आते हैं मार्क्सियन थ्योरी, रैडिकल पर्सपेक्टिव और रेवोल्यूशनरी थ्योरी. This approach we have even studied in IR. Karl Marx and Friedrich Engels, please do remember, this is PYQ, repetitively asked. Books: The Poverty of Philosophy, The Communist Manifesto, The First International Working Men's Association. Important है. Poverty of Philosophy is PYQ, already asked in exam. Communist Manifesto already asked in exam. ठीक है. अब Karl Marx had an radical approach. एंटी कैपिटलिस्ट. क्या पढ़ेंगे हम इसे? एंटी कैपिटलिस्ट या रेवोल्यूशनरी, अपोजिट ऑफ सिडनी एंड ब्रिटिश वेब. एक चीज दोनों के बीच में जो कॉमन है कार्ल मार्क्स और सिडनी ब्रिटिश के बीच में, दैट दे हैव एक्सेप्टेड क्लास स्ट्रगल. दे बिलीव यस, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर are the two groups. Capitalists and trade unions are two different groups and they have the class struggle. The only difference is Sidney British Webb uses non-revolutionary method, शांति वाले. They believe कि एक ही सोसाइटी में रह के सर्वाइव करना है. बट मार्क्स का कहना है कुछ काम शांति से नहीं होता है. Everything has to be through revolutionary method. Why? Because he believed that capitalism is the core of exploitation. ये exploitation ही करेंगे, ये अपना ही फायदा सोचेंगे. अगर स्टेट इंटरवेंशन जैसे कि लॉ, अगर गवर्नमेंट, जैसे सिडनी ब्रिटिश वेब ने कहा था, लीगल एनैक्टमेंट यानी लॉ लाकर चीजें रिजॉल्व की जा सकती है. मार्क्स का कहना है इवन द स्टेट इंटरवेंशन, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर का ही फायदा होगा, एम्प्लॉय का कोई फायदा नहीं होगा. तो कैसे करेंगे? इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या करें जो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है? सो कार्ल मार्क्स सेड दैट यू हैव टू ओवरथ्रो दिस सोसाइटी. Overthrow this society, capitalist society, and have the power control or power balance through political power. For that, what you are going to do? Form a trade union which is revolutionary, which is non-cooperative, which is doing strikes, band, ghera, whatever is necessary to fulfill their need. Because being cooperative is not going to work as per the Karl Marx. Am I clear? क्या कहा उन्होंने? स्ट्राइक, बंद, घेराव, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रगल.
political struggle he advocate political struggle against the state to counteract bourgeoisie's ये आपको याद रखना है. इन्होंने क्या, कैपिटलिस्ट को बोर्गियोसिस एंड लेबर्स को प्रोलेटरेट बोला है. ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है. तो ट्रेड यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियंस, इनके हिसाब से ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन इंस्ट्रूमेंट है टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म. जबकि सिडनी ब्रिटिश वेब कहते हैं कि नहीं, इट इज रीस्ट्रक्चरिंग. वो ओवरथ्रो नहीं करना है, उनको रीस्ट्रक्चर करना है. क्रिटिसिज्म डज नॉट अकाउंट फॉर पीसफुल लेबर कैपिटल रिलेशन एंड डिफरेंसेस अमंग द वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. इनका मानना, इन्होंने इनको जो क्रिटिसाइज किया गया है वो इस पे क्रिटिसाइज किया गया है कि जरूरी नहीं है ना कि जो स्ट्रगल हो रहा है या जो कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा लड़ाई झगड़े का हो. कुछ एम्प्लॉयज होते भी हैं वो शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं, तो हर बार लड़ाई की जरूरत क्या है? लेबर कैपिटल का एक हार्मोनिकल पीसफुल रिलेशनशिप भी हो सकता है. उसको बिल्कुल इग्नोर किया है कार्ल मार्क्स ने. नेक्स्ट थ्योरी हम आते हैं, पोलमैन्स जॉब कॉन्शियस थ्योरी, स्कैरसिटी कॉन्शियस थ्योरी. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो हमारी क्लास स्ट्रगल थ्योरीज हैं, जो आपकी सिडनी की एंड ब्रिटिश वेब और आपकी कार्ल मार्क्स की, ये थ्योरी क्या है? दोनों थ्योरी क्लास स्ट्रगल है, यानी क्लास कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है. हम ट्रेड यूनियन हैं, हम वर्कर हैं, हम एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयर है. हमें हमारी रक्षा खुद करनी है, हमें हमारे बारे में सोचना है. दिस इज क्लास कॉन्शियसनेस. सो सिडनी की थ्योरी और कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्लास कॉन्शियसनेस पे है, बट पोलमैन की थ्योरी जॉब कॉन्शियसनेस पे है, क्लास कॉन्शियसनेस पे नहीं है. पोलमैन थ्योरी सेज दैट trade unions are formed when the laborers or the employee become aware about the scarcity of their job. जब उनको रियलाइज होता है ना कि जॉब्स जो उनको है अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, इट इज बिकमिंग स्केयर, इट इज टेकन अवे फ्रॉम देम, सो दे आर नॉट क्लास कॉन्शियस, दे आर नॉट फॉर्मिंग द ट्रेड यूनियन कि हम वर्कर्स हैं क्योंकि हम एम्प्लॉइज हैं, हमें अपने लिए लड़ना है. नो, दे आर फॉर्मिंग द ट्रेड यूनियन बिकॉज दे हैव ऑब्जर्व्ड कि उनके जो जॉब है वो जा रहे हैं. दे बिकमिंग जॉब कॉन्शियस, they become aware of job scarcity, and in order to protect, कि बचाना पड़ेगा, ऐसे तो हमारी जॉब नौकरी ले लेंगे ये लोग, तो ऐसे केस में they come and they join the trade unions, they form the trade unions. Am I clear? So Perlman have rejected the class consciousness and introduced the job consciousness. Trade union emerge when workers become aware of job scarcity, unite, protect employment opportunities. इन्होंने ये theory, he has gone through the studies, ठीक है, based on the movement of trade union US, UK, Germany and Russia. On this studied, he have given job consciousness. ठीक है, methods that he focuses upon. Job consciousness के अंदर भी he is focusing on that workers should be united. They should take a collective action to maintain their securities. और जो लेबर मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट, नाउ the difference between the trade union movement and the labor movement, usually people take it as one, but you need to understand labor movement initially start, then trade union movement starts. पहले लेबर मूवमेंट होता है, फिर ट्रेड यूनियंस मूवमेंट हुआ. इंडिया में भी द ट्रेड यूनियंस ऐसे ही नहीं बन गए अचानक से, पहले लेबर मूवमेंट हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय लेबर मूवमेंट? एक तरीके का ऐसा मूवमेंट लेबर्स के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में, दैट दे आर स्टार्टिंग प्रोटेस्टिंग. वो जब अवेयर हो गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू करी, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उनके इस मूवमेंट को हम लेबर मूवमेंट कहते हैं. जैसे जैसे लोगों को रियलाइज हुआ ये मूवमेंट बढ़ा, उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उसे हम कहते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट. So, according to Perlman, labor movement are influenced by capitalism resistance, intellectual dominance, trade union maturity. अब ये क्या है? तो इसका ये मतलब है
कि ये जो लेबर मूवमेंट होगी, मींस एम्प्लॉइज जो लेबर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉयर फॉर सेविंग देयर जॉब, ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर पे। यानी ये जो मूवमेंट है मिलिटेंट होगा, रेवोल्यूशनरी होगा, नॉन रेवोल्यूशनरी होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन 2-3 फैक्टर। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म रेजिस्टेंस। कैपिटलिज्म रेजिस्टेंस का मतलब है जो एम्प्लॉयर है जो बैठा हुआ है उस वो अगर इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को रेजिस्ट कर पा रहा है, वो कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बिजनेस चल रहा है, हमारे पास और एम्प्लॉयज हैं, करते बैठो, स्ट्राइक करना है, प्रोटेस्ट करना है, करो। अगर वो रेजिस्ट कर पा रही है तो ये ट्रेड यूनियन लेबर मूवमेंट की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस, इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस का यहाँ पे मतलब है जो एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सटर्नल जो सपोर्ट दे रहे हैं ट्रेड यूनियन को, अगर वहां पे वो इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस ज्यादा है ट्रेड यूनियन के साइड से, ऑटोमेटिकली वो लेबर मूवमेंट ज्यादा होगा। एंड द ट्रेड यूनियन मैच्योरिटी, ट्रेड यूनियन मैच्योरिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, उनका नॉलेज क्या है, वो कितना समझते हैं, कितने अपने राइट्स को समझते हैं। अगर वो मेच्योर्ड है, वो सब समझते हैं, उनकी नॉलेज है, तो डेफिनेटली लेबर मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके अंदर में एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो है जेन्युइन ट्रेड यूनियंस फोकस ऑन ब्रेड बटर। जेन्युइन ट्रेड यूनियन का यहाँ पे मतलब होता है जो ट्रेड यूनियन रियलिटी में सच में अपने एम्प्लॉयज के बारे में फोकस करेगा, वो फोकस करेंगे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इश्यूज, वेजेस। ब्रेड एंड बटर का यहाँ पे मतलब है उनका फोकस होगा बिजनेस, उनका फोकस होगा कि हमें हमारे लिए नौकरी चाहिए, हमारे लिए वेजेस चाहिए, हमारे लिए सिक्योरिटी चाहिए। तो ये जेन्युइन ट्रेड यूनियन का फोकस है। ठीक है, so criticism is over emphasis on job consciousness and underestimate the role of intellectuals in the role movement, labor movement। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी पर्लमैन की। तो पर्लमैन की थ्योरी क्या है, क्लास कॉन्शियस नहीं है, जॉब कॉन्शियस है। ठीक है, फॉन्ट विजिबल है, शुड आई इंक्रीज इट मोर? चलो नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं हम, हॉक्जीज सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। रॉबर्ट एफ हॉक्जी ने दिया है, बुक्स प्लीज याद रखेंगे, PYQ है, ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द लेबर। नाउ रॉबर्ट एफ हॉक्जी has used a pluralistic approach of trade union. Pluralistic approach of trade union says that the industry consists of two groups, and these two groups has to be actively participating in the maintenance of industrial relation. ये यूनिटरी पर्सपेक्टिव नहीं है, हॉक्जी सेड एक प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दो लोग हैं और दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एंड टू एक्सप्लेन दिस he has given socio-psychological theory. Socio here stands for the society and psychology stands for here employees thinking process, cognitive, perception, belief system. Now, what did Hawksey say? Hawksey says trade unions are formed when the workers or the employees who are into the same environment, working in the same environment, have same background, have same temperament, have same thinking, and they are facing same problems. So what is this? They have the same society structure. So when they are having same background, same environment, same temperament, same problem, they tend to have a solution which is through common interpretation, which is through common interpretation says जब वर्कर को लग रहा है मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मेरे साथी को भी प्रॉब्लम है, उसको भी प्रॉब्लम है, दे कम टुगेदर और तब जाके ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन होता है। सो when they are into the same environment, same background, same temperament,
they have the tendency to come up with the solution of the problem in a common interpretation, and to solve this problem they or the people who with the same environment they form the trade union. ठीक है, वो जब देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम एक ही तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, तब ट्रेड यूनियन बनता है। अब इन्होंने एडवोकेट किया प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच का सिंपल सा यहाँ पे मतलब है कि ट्रेड यूनियंस ने समझा कि हम सेम एनवायरमेंट में हैं, सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनकी परसेप्शन एक हो गई, वो प्रॉब्लम को सेम तरीके से रिजॉल्व करेंगे, बट प्लूरल वे में। प्लूरल यानी एम्प्लॉयर को ध्यान में रखते हुए। कैपिटलिस्ट अप्रोच है ये। कैपिटलिस्ट अप्रोच का मतलब एम्प्लॉयर को भगाना नहीं है, एंटी कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट अप्रोच है, यानी उनके साथ में उसी सोसाइटी में रह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। प्लूरलिस्टिक कैपिटलिस्ट अप्रोच। इसके बाद he have classified the trade unions further as business friendly, revolutionary, predator and dependent union was added later on by their follower. What is business union? अब ये बिजनेस यूनियन का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रेड यूनियन। इन्होंने ट्रेड यूनियंस को क्लासिफाई किया कि अलग अलग तरह की ट्रेड यूनियन अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बन सकती है। तो पहला है आपका बिजनेस यूनियन। तो बिजनेस यूनियन क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था, पोलमैन की जो थ्योरी है वो क्या है? वो है जॉब कॉन्शियस। हमने क्लास कॉन्शियसनेस पढ़ी जो कि क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे है, सिडनी और मार्क्स की। पोलमैन की थ्योरी पढ़ी जो कि है हमारी किसकी बेसिस पे? जॉब कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस यूनियन है, ये ट्रेड कॉन्शियस है। ट्रेड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि ये जो ट्रेड यूनियन बनी है, इनकी सोल जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस को ग्रो करना, प्रोडक्टिविटी को ग्रो करना। सो बिजनेस यूनियनिज्म और बिजनेस यूनियंस आर ट्रेड कॉन्शियस, business conscious. They want to bring the development by increasing their productivity, and the business union are also called as the bread and butter union. क्यों bread and butter union कहते हैं इनको? ये बात पोलमैन ने कहा था कि जेन्युइन ट्रेड यूनियन है वो ब्रेड एंड बटर की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस यूनियनिज्म को ही ब्रेड एंड बटर यूनियन कहा गया है क्योंकि वो फोकस ही ब्रेड एंड बटर पे करते हैं, बिजनेस पे करते हैं। फ्रेंडली यूनियन आर द यूनियन विच फोकस ऑन द वेलफेयर। उनको वेलफेयर डेवलप करने की बात करेंगे, एम्प्लॉय को सपोर्ट करेंगे, लाइक कंपनसेशन देके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। रेवोल्यूशनरी, ये जो ट्रेड यूनियन है ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलेंगे, घेराव करना, बंद करना, कोऑपरेटिव तो है ही नहीं, रेवोल्यूशनरी मेथड यूज करेंगे अपने बात को मनवाने के लिए। प्रिडेटरी जो ये ट्रेड यूनियन होते हैं ये किसी एक सिद्धांत पे, एक प्रिंसिपल पे, दे डोंट वर्क ऑन वन प्रिंसिपल। उनको जब लगता है कि हमें बिजनेस यूनियनिज्म बनना है, जब हमें ट्रेड पे फोकस करना है, वो ट्रेड यूनियनिज्म बन जाते हैं। When they feel they need to be friendly, वो फ्रेंडली बन जाएंगे। अगर उनको लगता है कि रेवोल्यूशन बनना है, रेवोल्यूशनरी, तो वो रेवोल्यूशनरी बन जाएंगे। सो प्रिडेटरी यूनियन कीप्स ऑन चेंजिंग as per the requirement, they don't have any one principle. And dependent unionism, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आपको यहाँ पे याद करना है। डिपेंडेंट यूनियनिज्म को हम कई बार कंपनी यूनियनिज्म को टर्म से जानते हैं। डिपेंडेंट यूनियनिज्म, कंपनी यूनियनिज्म मीन्स दिस ट्रेड यूनियन तो है बट दे आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर. So employers are sponsoring the activity. Usually the company unionism is restricted. ऐसे यूनियन नहीं होने चाहिए जो एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप पे हैं या एम्प्लॉयर का इन्वॉल्वमेंट है. So dependent trade unionism. Next is oversimplifies the trade union classification. Am I clear? Hoxie's का सबको समझ में आ गया students? I hope I'm not too fast, neither too slow, neither too going into detail, neither making you some confusion. मैं सारे के सारे थ्योरीज को बहुत ही सिंपल वे में एक एक पॉइंट को बाइफरकेट करके, हर एक पॉइंट में अगर आप कीवर्ड पकड़ रहे हो
तो आप इन चीजों को समझ रहे हो। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरीज, तो ही आप उन थ्योरीज को याद कर पाएंगे। कहाँ प्लूरलिस्टिक है, कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं, सोशलिस्ट किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है, रीजन क्या है वहां ट्रेड यूनियन फॉर्म होने का। नेक्स्ट इज Tentnam's technological theory, men versus machine, rebellion, anti-technology, technological, men versus machine। नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि यहां जो ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन है कंप्लीट और कंप्लीट मैकेनाइजेशन यानी मशीन के अगेंस्ट है। पोलमैन ने कहा था जब जॉब स्कैरसिटी होती है, जॉब की कमी होती है, तो ट्रेड यूनियन बनते हैं। टेंटनम, फ्रैंक टेंटनम्स की थ्योरी, द बुक इज फिलोसॉफी ऑफ लेबर, अगेन वर्कर यूनिटी, रिएक्शन टू मैकेनाइजेशन। इनका मतलब है लेबर मूवमेंट, again I'm saying labor movement is as a result of machine era। जैसे जैसे मशीन आई, मैकेनाइजेशन हुआ, it started replacing labors, people were replaced, मशीन ने उनकी जगह ले ली। as a result the employees or the workers understood what is happening, they realize that their security is being lost, job security, social security, justice, freedom, everything is lost, this is being disrupted। how? through mechanization। रियलाइज होता है मशीन ने क्या किया है, हमें रिप्लेस कर लिया है, तो अगर हम मशीन्स के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, हम अलाउ ही नहीं करेंगे, हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम बेसिकली अलाउ नहीं करेंगे इस मैकेनाइजेशन को। क्यों? मैकेनाइजेशन लेड टू सोशल ऑटोमाइजेशन, जो कि हम कहते हैं अनकॉन्शियस रिबेलियन, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस यानी यहां पे जो मूवमेंट हुआ या जो ट्रेड यूनियन बन रही है ना, एज अ रिबेल है। रिबेल अगेन किसके? मशीन के अगेंस्ट, मशीन एरा के अगेंस्ट। सो वो सोशली ऑटोमाइज था, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था, नो वन इज फोर्सिंग देम, दे आर अनकॉन्शियसली स्टार्टेड, दे हैव रिबेलिंग, अपोज करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट सीइंग देमसेल्फ एज अलोन, इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअली खुद को देखते, मेरी तो जॉब जा रही है, उनको दूसरों से ज्यादा, like they are not thinking about other, they are more thinking about their own individual justice, freedom, and when they realize this, they come together and the trade unions are formed। so trade unions are formed as a reaction to the industrial society's automation। trade unionism is conservative, counter revolutionary, opposite to revolutionary। वो मशीन के खिलाफ खड़े हैं, बट दे आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। क्यों? उनको पता है कि मैं अगेंस्ट एम्प्लॉयर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। द रीजन इज दे हैव द मशीन्स। सो व्हाट दे बिलीव? दे बिलीव इन कंजर्वेटिव, दे आर रेडी टू वर्क अंडर द कैपिटलिस्ट, बट मेकिंग श्योर दैट दे हैव द पार्टिसिपेशन। अलाउ अस कि मशीन्स लाना है तो किस लेवल तक लाना है, हमें ट्रेन करो, डेवलप करो, लेट अस। सो दे आर मोर फोकस ऑन पार्टिसिपेशन। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट एम्प्लॉयज आर जस्ट रेजिस्टिंग बिकॉज ऑफ मशीन एरा। क्या ऐसे हो सकता है जस्ट कि मशीन को वापस ले जाओ? ऐसा नहीं हो सकता, मशीन्स हैं और रहेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बिलीव, इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट दे आर, द ट्रेड यूनियंस आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ मैकेनाइजेशन। महात्मा गांधी सर्वोदया अप्रोच, also called as trusteeship approach, given by Mahatma Gandhi, books Young India, Harijan, Peaceful Industrial Relation, Righteous Struggle, methods conciliation, arbitration, trusteeship, lawful strike। now what did Mahatma Gandhi say? Mahatma Gandhi said all laborers, workers are humans, they are human, so treat them with dignity, treat them with dignity। the reason is they are source of wealth, so whatever employees are earning, that is because of the labor, that is because of their services, their hard work, so you need to treat them as humans। so what you have to do, you have to, or the trade unions, whatever trade unions are formed, those trade union should work on raising workers morale and intellectual। in trade union का, see महात्मा गांधी सेड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब ये जो कम्युनिटी बना रहे हो ना आप ट्रेड यूनियन,
This should exist only to raise the value. ट्रेड यूनियन का काम स्ट्राइक करना नहीं है अननेसेसरी, ठीक है। और अगर स्ट्राइक भी जा रहे हो तो महात्मा गांधी हैज गिवन द रीजंस अंडर विच यू कैन गो ऑन स्ट्राइक. तो मेन पर्पस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज टू रेज द वर्कर्स वैल्यू, इंटेलेक्चुअल, इंक्रीज देयर नॉलेज एंड मोरल, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम मशीन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड to support the employees, help the worker, not to replace them. And in case if there are conflict, first employee and employer should come together, resolve it. And if they are not able to resolve the problem, there has to be someone called as third party through conciliation, voluntary conciliation. So voluntary conciliation is by themselves they are reaching the third party, and the third party is trying to resolve their problem. Or arbitration, again the third party, where the third party is imposing यानी पहले तो आपने voluntarily किया, voluntary यहाँ पे गए आपस में तीसरे बंदे के पास में, उसने आपको सलाह दी, एडवाइस किया कि ऐसा ऐसा करो, आपने उसकी सलाह लेनी है नहीं लेनी है वो आपका डिसीजन, ठीक है. आर्बिट्रेशन इज तीसरे बंदे के पास में गए, उसने आपकी बात सुनी, आपकी ही एग्रीमेंट के थ्रू आपने एग्री किया वो पॉइंट्स को. अब ये जो आर्बिट्रेटर है वो अवार्ड दे रहा है कि भैया आपने ही एग्री, आपका कंसेंट के बाद में मैंने ये डिसीजन लाया है, लेकिन अब आपको यहाँ बाइंडिंग है, मानना पड़ेगा. लॉफुल स्ट्राइक होगा तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, मतलब unnecessary grievance, without any reason, no strike should be there. Strike should be based on non-violence. बैकलेग्स यानी जो पीछे हट रहा है, जो स्ट्राइक पे नहीं जाना चाह रहा है, उनको कभी भी आपको डराना धमकाना नहीं है. He completely opposes public utility strikes and sympathetic strike. Just because एक ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे है, उनको सपोर्ट करने के लिए और बाकी लोगों को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है. He advocates trusteeship and nationalization. Trusteeship is ownership. Employer should take the ownership and think about welfare of employees. ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो ट्रस्टी है, वो है जिसके पास में पावर है, मटेरियल है, मनी है, सो ही हैज टू डू दैट. नेक्स्ट, कॉमन्स एनवायरमेंट थ्योरी. एनवायरमेंट थ्योरी क्या है टर्म? एनवायरमेंट थ्योरी, pragmatic approach. John R. Commons, documentary history of American Industrial Society. He is also called as Sidney and Webb of America. ठीक है, ये जॉन आर कॉमन्स इज अ फॉलोअर ऑफ सिडनी एंड वेब. उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर उन्होंने अमेरिका में सेम चीजों को ऑब्जर्व किया था और सेम मेथड को उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन या ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन का रीजन बताया. तो what did Webb do? What did John say? John said trade unions formation are influenced by environmental factor. It means, so let's say there are employees working in an industry. They are surrounded by the factor, internal and external factor. External factors like market condition, government, law, competition, expansion of the product, so on. Now there can be some internal factor as well, like new product being launched. This factor, all this factor make the employees to come together and form the trade union. The reason is, when these factors are affecting, the employer anyways want to earn the profit. उसको प्रॉफिट चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा, उसको प्रॉफिट चाहिए तो एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा. सो देयर इज क्लास स्ट्रगल. यही हमने सिडनी ब्रिटिश वेब केस में पढ़ा, क्लास स्ट्रगल होगा. सो अकॉर्डिंग टू हिम, क्लास स्ट्रगल एमर्जेस साइमल्टेनियसली विद कैपिटलिज्म. जैसे ही लेबर एम्प्लॉयर आएगा, सोसाइटी कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्री लेके स्ट्रगल होगा. बट he said the best way of resolving those conflicts is collective bargaining, which ultimately should result in employee and employer partnership relationship. That was your Commons environment theory, जो कहता है कि ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन एनवायरमेंटल फैक्टर के अफेक्ट होने से होता है. GDH क्लोज ट्रेड यूनियन थ्योरी ऑफ कंट्रोल इंडस्ट्री. क्या कहा यहाँ पे?
कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। तो यहां पे भी क्लास स्ट्रगल की बात हुई है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर द टू क्लासेस एंड दिस क्लास स्ट्रगल इज इनएविटेबल, आप इससे भाग नहीं सकते। सो व्हाट डिड ही से, इन्होंने थोड़ा सा कार्ल मार्क्स का अप्रोच यूज किया, क्या कि कंट्रोल, टेक अ कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री। एंड हाउ यू कैन टेक द कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज? सो नॉट थ्रू द रेवोल्यूशनरी, तो नॉट थ्रू द रेवोल्यूशनरी यू आर गोइंग टू कंट्रोल द इंडस्ट्री, बट थ्रू नॉन रेवोल्यूशनरी मेथड्स लाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग, लाइक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि इंडस्ट्री के ऊपर आप एज एन एम्प्लॉई, एज एन ट्रेड यूनियन कंट्रोल करो, बट रेवोल्यूशनरी मेथड से नहीं, स्ट्राइक से नहीं, बंद से नहीं, पार्टनरशिप से, वर्कर्स पार्टिसिपेशन से, गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन से, कलेक्टिव बार्गेनिंग से, right? Because he have recognized that there are the causes, there are the inconvenience which are caused by these strikes, and hence strikes are unnecessary. So he believed that there has to be a control of industry by the trade unions. Book World of Labor, GDH Klo, इसलिए इनका बुक का नाम है वर्ल्ड ऑफ लेबर, इसलिए क्योंकि इनका मानना है जो पूरा इंडस्ट्री का कंट्रोल है वो लेबर के पास होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, साइमन्स थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक, क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म। According to Simon, Henry C. Simon, what did he believe? He believes that, give me a second. साइमन थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक। पहले तो डेमोक्रेसी, व्हाट डिड ही से, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या बताया? दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। As our country is, we are democratic country, it means we as an citizen, we select our leader, and it is through the participation, through the discussion, through consensus, मिलजुल के हम अपनी सरकार को चुनते हैं। आर्बिट्री डिसीजन नहीं होता है, या कोई ट्रेडिशनल यहाँ पे जनरेशन से जो राजा महाराजा है वो नहीं चलता है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो डेमोक्रेसी इज व्हाट? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, and here everything is in consensus, everything that functions in the democracy is through consensus, मिलजुल कर। But what did Simon say? Simon says that trade union which are based on monopolistic and belief system, monopolistic यानी हम कंट्रोल करेंगे सब कुछ नहीं, he have completely neglected that trade unions which are based on monopolistic point of view, based on violence, will lead to abuse of system, उससे नुकसान ही होगा। So what should be there? There has to be decentralization, means the trade union should be given the power, breaking the power concentration in both economy, government through decentralization, federalism and rule of law. What is federalism? Our country is federal government, we have central government and state government, two governments are there, that is federalism. So federalism occurs whenever necessary, central government take a control over the state government. Rule of law means everything in India is as per the law. If law is there, so for us as in India, constitution is greatest law. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम उसके हिसाब से चलते हैं, तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यानी
trade unions just based on violence won't work. It will lead to abuse. So he has given an anti-monopoly policy and focused on decentralization. Next is coerce and associate protest. Protest. What is protest theory? जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूं यही आपके कीवर्ड हैं और आपको यही याद रखने हैं. Kerr, Dunlop, Harbison and Mayers. Now what is this? Trade unions are organized as a protest to industrialization. अब यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने मेन वर्सेस मशीन वाली थ्योरी में भी टेंटनम की थ्योरी में पढ़ा था. ट्रेड यूनियंस आर रिबेलियन, अनकॉन्शियस रिबेलियन अगेंस्ट व्हाट? मैकेनाइजेशन. ये पढ़ा था. यहां है ट्रेड यूनियन इज अ प्रोटेस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है when the industries are formed, they have discipline, they have rules, they have a system, and the employees, when they start disliking this discipline, disliking this rule and system, they start protesting. Because why? Because they believe this system, this particular discipline rules are not helping them out. Okay, then they start protesting. As a result of this industrialization, workers come together and they form the trade union. Because this industrialization increases absenteeism, turnover, sabotage and number of the things. ठीक है, तो इसके अंदर में आपको क्या याद रखना है? That protest है, और trade union is a result of protest of industrialization. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का बाय प्रोडक्ट है ट्रेड यूनियनिज्म. ही हैज डिफाइंड 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखेंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. दिस थ्योरी गिवन बाय एस सेचलर. ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? There are certain rules, ठीक है, and these rules actually are followed by industries. जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर में भी कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं जो फॉलो करे जाते हैं. ठीक है, and similarly industries have their own rules, jurisprudence या rule system होता है. When the workers fail to individual bargain with the employer, they form the trade unions as their protective mechanism, and they start influencing this system of industrial jurisprudence. Am I clear? समझ में आ गया कि वो क्या करते हैं? जब वर्कर्स इंडिविजुअली फेल होने लगते हैं कि नहीं हो रहा है, they are not able to bargain with the employer, then they start forming the trade union. Am I clear? ठीक है. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि बेसिकली रूल्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए रिलेशनशिप को. इकोनॉमिक थ्योरी, प्रोटेक्शन थ्योरी. इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी गिवन बाय मिटशेल. ही हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड इंडिविजुअल बार्गेनिंग. इंडिविजुअल बार्गेनिंग से कुछ नहीं होता, या इंडिविजुअली अपने राइट्स के लिए लड़ने से कुछ नहीं होता. व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्रू दी टू द एम्प्लॉयज. बस यही लाइन याद रखनी है, इससे ज्यादा मिटशेल के इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको.
Harold Joseph Lusky, Theory of Pluralism and Trade Unionism. हेरोल्ड जोसेफ लस्की, बुक याद रखेंगे, ये बहुत रिपीटेटिवली पूछा जाता है. इनके हिसाब से ट्रेड यूनियंस, whichever the trade unions are, they need to be voluntarily organized, forcefully nahi, they need to be voluntarily organized committees, and he focused on Marxist idea. इज अ प्लान्ड इकोनॉमी. मार्क्स ने क्या कहा था? रेवोल्यूशनरी. जहां जहां जब लगेगा वहां पे आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं. सो मार्क्सिस्ट आइडिया, अ प्लान्ड इकोनॉमी. प्लान्ड यानी इकोनॉमी जो हमारे कंट्री की है प्लान्ड होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड हैव बीन प्रॉपरली प्लेस्ड. सोशल वेलफेयर पे फोकस होना चाहिए. मोर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सोशल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी रादर देन द शॉर्ट टर्म गोल्स. इसमें जो याद रखने वाली चीज आपको याद रखनी है, हेरोल्ड जोसेफ लस्की का बुक का नाम, और ही फोकस्ड ऑन वॉलंटरी कम्युनिटी, इससे ज्यादा नहीं. अशोक मेहता की हिस्ट्री, सॉरी, अशोक मेहता के थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए, नॉन कंजम्पशन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. अकॉर्डिंग टू अशोक मेहता, ट्रेड यूनियनिज्म और द ट्रेड यूनियंस इन द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड, जहां सब चीजें इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, वहां पे जस्टिफाइड है कि दैट दे आर आस्किंग फॉर वेज इंक्रीज. ठीक है, जहां पे सब कुछ डेवलप्ड है वहां पे ट्रेड यूनियन आर आस्किंग फॉर द वेज इंक्रीज इज फाइन. बट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज द ट्रेड यूनियन ऑब्जेक्टिव शुड बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि आपकी कंट्री ही डेवलप नहीं है. तो you as in developing country, if you are forming the trade unions, you should focus on productivity. So trade union play what? Mediating role of increasing the production. And based on this, he has the book, The Mediating Role of Trade Union in Underdeveloped Country, the role of trade union in underdeveloped countries. And hence it is called as non-consumption theory of trade union. They are non-consuming. In developed country, they are already fine. Okay, you're asking for wages. But in non-developed, you are non-consumption, means you are more focusing on what? Productivity. This is the complete theories of trade unionism, and these are more than enough. In next session, we would be moving to code of discipline, code of conduct, जहां से questions आपको पूछे जा सकते हैं. इंडिया के अंदर में characteristic of trade union and so on. Am I clear, students? Okay, did you like this session? Pointers, I will give you the notes, don't worry. इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा. Thank you. I have another class. We would be meeting in a next session. बाकी लोग भी हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं. 10-12 लोग क्लास में हैं तो आप, ठीक है, चलो, थैंक यू.